Namaste. Today we are going to study 7th Maths topic indices. Today we are going to solve practice set 28 and 29 based on laws of indices. Those who are not subscribed our channel, please do subscribe so that you'll get all notifications. If a is a non-zero rational number, m and n are positive integers and m is greater than n, then a raised to m upon a raised to n is equal to a raised to m minus n. Let's learn the meaning of a raised to 0. If a is not equal to 0, then a raised to m upon a raised to m is equal to 1. अगर हम इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं तो इसका आंसर 1 आता है. Also we can say also a raised to m upon a raised to m बेस सेम है. ओके ये डिवीजन में है. जब डिवीजन में होता है तो कैसे लिखेंगे? a raised to m माइनस m. ओके इसका मतलब क्या हुआ? a raised to m माइनस m a raised to 0. ओके therefore a raised to 0 is equal to 1. Let's learn the meaning of a raised to minus m. a raised to minus m, we can write a raised to minus m into 1 means what? a raised to minus m. ओके हम ऐसे भी लिख सकते हैं. अभी a raised to minus m ऐसे लिखेंगे. 1 मतलब क्या होता है? 1. ओके 1 a raised to m upon a raised to m is equal to 1. सो ये वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे. इन दोनों को अगर कैंसिल करें तो 1 ही आता आंसर. ओके अभी विल सॉल्व दिस. a raised to minus m multiply by a raised to m divided by a raised to m. ओके अभी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडाइसेस जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो इंडाइसेस को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं. मतलब क्या आएगा? a raised to minus m प्लस m डिवाइड बाय a raised to m. मतलब क्या आएगा? माइनस m और प्लस m मतलब क्या आएगा? a raised to 0 अपॉन a raised to m. ओके a raised to 0 मतलब क्या है? a raised to 0 वैल्यू इज़ 1. तो हम ये कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन a raised to m. मतलब ही क्या? a raised to माइनस m इज इक्वल टू a 1 अपॉन a raised to m. इफ a raised to माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a raised to m हम बोल रहे हैं. therefore a raised to माइनस 1 का क्या आएगा? a raised to माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a. अभी यहाँ पे 1 अपॉन a raised to 1 भी बोल सकते हैं. 1 लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट द आंसर इज 1 अपॉन a. ओके ऑल्सो वी कैन से a raised to minus 1 is the multiplicative inverse of a. a multiplied by 1 upon a is equal to 1. Therefore, a multiplied by a raised to minus 1 is equal to 1. ओके इसका मतलब यही है. देखो a है, a raised to minus 1 मतलब क्या हुआ? a 1 upon a, 1 upon a. ये a कैंसिल, वैल्यू आ गई 1. ओके राइट. सो therefore a multiplied by a raised to minus 1 is equal to 1. Therefore we can say a raised to minus 1 is the multiplicative inverse of a. Okay, let us take one example. So find the multiplicative inverse of 5 upon 3. Okay, इसका multiplicative inverse कैसे आएगा? 5 upon 3 raised to minus 1. इसका रेसिप्रोकल कर दो. 3 upon 5 is the answer. तो अभी तक हमने कौन कौन से लॉ ऑफ इंडाइसेस सीखे? a raised to m अपॉन a raised to n. ये जब डिवीजन होता है तो a raised to m माइनस n यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होता है. ओके a raised to 0 की वैल्यू क्या आती है? हमेशा 1 आती है. देन a raised to minus 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a raised to m. ओके a raised to minus 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a. राइट. नेक्स्ट इज ओके 4 अपॉन 7 raised to minus 3 मीन्स ये हम यूज़ करेंगे a raised to minus 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a raised to m. ओके तो इसे कैसे लिखेंगे हम? 1 अपॉन 4 अपॉन 7 raised to 3. इसका मतलब क्या हुआ? इसे एक्सपांड करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम. 4 upon 7 how many times? 3 times. Okay 4 upon 7 into 4 upon 7 into 4 upon 7
इसका आंसर फाइंड करेंगे, कितना आया, 4 इंटू 4 इंटू 4 इज़ 64, 7 इंटू 7 इंटू 7 इज़ 343। ओके, अभी 1/64/343 है। अभी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 343/64, मतलब ही क्या हुआ, 343/64, या फिर इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं 343 7 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 7/4 raised to 3। ओके, मतलब ही क्या, 4/7 raised to -3 is the 7/4 raised to 3। Hence, we get the rule that if a is not equal to 0 and b is not equal to 0 and m is a positive integer, यहाँ पे a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है। ओके, m is positive integer, then we can say that a/b raised to -m is equal to b/a raised to m। m पॉजिटिव है, ओके, ये माइनस साइन अलग है। ओके, सो a/b m is equal to b/a raised to m। If a is a rational number, a is not equal to 0 and m and n are positive integers, then a raised to m upon a raised to n is equal to a raised to m minus n। यहाँ पे डिवीजन है तो इंडाइसिस में हम m माइनस n लेंगे। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, 3/4 डिवाइडेड बाई 3/6। यहाँ पे बेस सेम है, इंडाइसिस डिफरेंट है। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 3/4 डिवाइड बाई 3/6। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3/4 मीन्स हाउ मेनी टाइम्स 3, 4 टाइम्स, 3/6 मीन्स हाउ मेनी टाइम्स 3, 6 टाइम्स। ओके, अभी हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, कितने बचे, 1/3/2। ओके, अभी 1/3/2 है, राइट। हम डायरेक्टली ये रूल यूज़ करके हम इसे लिख सकते थे, कैसे लिखेंगे, 3/2 m माइनस n। ओके, 4 - 6, यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 3/4 में से 6। ओके, यहाँ पे देखो माइनस साइन है, मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 4 गए 2, लेकिन बड़ा नंबर कौन है, 6, इसकी साइन क्या है, निगेटिव, सो आंसर आएगा -2। ओके, अभी हमें क्या मिला है, 1/3/2। इसी का मतलब क्या होता है, इसे अगर हम कैसे लिखेंगे, ये आएगा 3/-2। ओके, 3/-2 मतलब 1/3/2। इससे पहले जो हमने रूल देखा था, a⁻1 = 1/a, वो है ये। ओके, लेट अस स्टडी वन एग्जाम्पल, -1/6। हाउ मेनी टाइम -1, 6 टाइम्स। अब देखो -1/6 आंसर क्या आएगा, ओरली हम कह सकते हैं ये इवन नंबर है इंडेक्स का। अगर ये इवन नंबर है तो, लेकिन बेस अगर नेगेटिव है तो जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। ओके, ये हमेशा याद रखना। इफ़ m इज़ एन इवन नंबर देन जो भी तुम्हारा आंसर आएगा इसमें वो पॉजिटिव आएगा। इसलिए 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन ठीक है, हम स्टेप में देखते हैं। देखिए -1 कितना होता है, 1, +1 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आंसर फाइनल आंसर आएगा +1, मतलब 1 × 1 × 1 इज़ +1। ओके, नेक्स्ट -1/5, यहाँ पे ऑड है, m क्या है, ऑड है, इंडेक्स क्या है, ऑड नंबर, तो इसे पहले लिख लेंगे हम। इसका ओरली भी आंसर बता सकते हैं, इन सब 1 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आंसर निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड है, ये 5 ऑड है, इंडेक्स ऑड है, तो आंसर भी निगेटिव ही आएगा अगर बेस निगेटिव है, तो ये हमेशा याद रखना। ओके, कैसे आएगा, देखिए माइनस इंटू माइनस +1। ओके, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस +1,
माइनस बचा, ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, -1। सो इंडेक्स अगर इवन है और बेस नेगेटिव है तो आंसर आएगा प्लस मल्टीप्लिकेशन के बाद। इंडेक्स अगर ऑड नंबर है और बेस नेगेटिव है तो इसका जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा। सिंप्लीफाई a⁶ डिवाइडेड बाय a⁴। अभी यहाँ पे कौन सा लॉ हम यूज़ करेंगे, यस करेक्ट, वी विल यूज़ हियर a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n इज इक्वल टू a⁻m−n। ओके, तो अभी हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, a⁻⁴ a⁻m−n। ओके, आंसर क्या आएगा, a⁻⁴ 2। अभी यहाँ पे 6 है, 6 कैसे है, पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव, बड़ा नंबर जो होता है उसकी साइन हम आंसर में लिखते हैं, तो आंसर आएगा a⁻²। नेक्स्ट इज m⁵ डिवाइडेड बाय m⁸ सो बाय यूजिंग दिस लॉ a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m−n इज m⁵ हमेशा ये रीज़न देना है, एक तो ऐसे दे दो पहले या फिर कर्ली ब्रैकेट में दो, रीज़न देना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज 5 - 8, अभी यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे हम, सब्सट्रैक्ट, 8 में से 5 गए, कितने बचे, 3, लेकिन वेट, यहाँ पे साइन देख लो आप, बड़ा नंबर 8 है, इसकी साइन है नेगेटिव, छोटे नंबर की पॉजिटिव है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है, तो हमेशा बड़े नंबर की साइन आती है, ये हमेशा ध्यान रखना, तो यहाँ पे आएगा -3, ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली वी कैन सॉल्व दिस p⁻³ डिवाइडेड बाय p⁻13 बाय यूजिंग दिस लॉ p⁻³ - 13। यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होगा, 13 में से 3 गए, कितने बच्चे, 10, लेकिन यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है, 13, इसकी साइन क्या है, नेगेटिव, सो यहाँ पे आएगा -10। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं, इसलिए ये हमेशा ध्यान में रखना, ये गलती कभी मत करना। x⁻10 x⁻10 डिवाइडेड बाय x⁻10 बाय यूजिंग दिस रूल x⁻10 - 10 आएगा, 10 - 10 मतलब क्या आएगा, x⁻0। हमने एक लॉ देखा था a⁻0, तो क्या आएगी वैल्यू, यस करेक्ट, a⁻0, यहाँ पे x⁻0 मतलब आंसर आएगा 1। क्यों 1 आया, बिकॉज a⁻0 इज इक्वल टू 1, ये लिखना भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो आंसर इज 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ -7⁻12 डिवाइडेड बाय -7⁻12। ओके, -7⁻12 -12, ओके, ये कैसे यूज़ किया, ये रीज़न देना इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था a⁻m अपॉन a⁻m इज इक्वल टू a⁻m−m, मतलब ही क्या, a⁻0। ओके, नेक्स्ट इज 12 - 12 क्या आएगा, 7⁻0। -7⁻12 - 12, व्हाट विल बी द आंसर, -12⁻0, मतलब ही क्या, एनीथिंग और एनी नंबर ⁻0 मतलब क्या आएगा, आंसर आएगा 1। ओके, क्यों, क्योंकि a⁻0 इज इक्वल टू 1 बाय रूल। ओके, नेक्स्ट इज 7⁵ डिवाइडेड बाय 7⁵3 बाय यूजिंग दिस रूल a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n रेज टू a⁻m−m, तो क्या आएगा, 7⁵5 - 3 दैट इज 7⁵2। अभी यहाँ पे देख लो, 5 - 3 मतलब सब्सट्रैक्ट करना है, बड़ा नंबर है 5, इसकी साइन है पॉजिटिव, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एज्यूम करते हैं कि पॉजिटिव होता है, 3 की साइन है नेगेटिव, तो आंसर में क्या आएगा, +2, या फिर +2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, एज्यूम होता है वो, तो आंसर आएगा 7⁵2, दैट इज वैल्यू ऑफ 7⁵2 इज 49। ओके, 4/5⁵3 डिवाइड बाय 4/5⁵2 बाय यूजिंग दिस रूल a⁻m डिवाइड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m−n, क्या आएगा, 4/5⁵3 - 2। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4/5 3 - 2 1 आएगा, एक तो 1 लिखो, नहीं तो ऐसे लिखा तो भी चलेगा, इसका मतलब ही 4/5, वैल्यू आएगी 4/5। 4⁻7 डिवाइड बाय 4⁻5, ओके, दैट इज 4⁻7 - 5 बाय यूजिंग दिस रूल a⁻m डिवाइड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m−n, 7 - a⁻7 - 5, 7 - 5 कितना हुआ आंसर, 2। अभी यहाँ पे 7
की साइन क्या है, पॉजिटिव, 5 की क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे ध्यान रखना बड़ा नंबर 7 है, ये पॉजिटिव है, +7 है, इसलिए आंसर भी +2 आएगा। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए 4:2। अभी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4:2 मतलब क्या, 4 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 4 ज़ा 16। नेक्स्ट इज इफ a and b are non-zero rational numbers and m is an integer, then a multiplied by b raised to m is, इसका मतलब क्या होता है, a raised to m multiplied by b raised to m. Okay, a upon b raised to m means a raised to m upon b raised to m. Okay, इसका मतलब क्या होगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे a raised to m और b raised to m. इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे, 2 × 3 raised to 4. अच्छा, 2 × 3 हम कितने टाइम्स लिखेंगे, 4 टाइम्स. ओके, राइट, 2 × 3 4 टाइम्स. देन ओपन द ब्रैकेट्स. आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट मैंने क्या किया, 2 एक साइड लिख लिए और 3 एक साइड. ये 4 टाइम्स, ये 4 टाइम, मतलब क्या हुआ, 2 हाउ मेनी टाइम्स, 2 raised to 4 multiply by 3 how many times, 3 raised to 4. मतलब ही क्या, a multiply by b raised to m is equal to a raised to m multiply by b raised to m. ओके, ये एक एग्जांपल हो गया. इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे, 4/5 raised to 3 कितने टाइम्स लिखेंगे ये हम, 3 टाइम्स. ओके, नेक्स्ट इज, ओके नेक्स्ट 4 how many times, 4 raised to 3. 5 how many times, 5 raised to 3. This is the answer. A upon b raised to m is equal to a raised to m upon b raised to m. A raised to m, b raised to m. Next is if a is a non-zero rational number and m and n are integers, then a raised to m raised to n, bracket raised to n, ये हम कैसे लिखेंगे, a raised to m multiply by n. Okay, that is a raised to mn. एग्जाम्पल देखते हैं, 5 raised to 2 raised to 3. तो अभी ये कैसे लिखेंगे, how many times 5 square, 5 square multiply by 5 square multiply by 5 square, because 3 टाइम, इंडेक्स इज 3. अभी क्या करेंगे, 5, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, a raised to m इंटू a raised to m हमने पढ़ा था पहले, ठीक है. तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए इंडाइसेस को हम प्लस कर देंगे, 2 + 2 + 2, मतलब आंसर क्या आया, यस 6 आया. ओके, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल, a raised to m इंटू m n. ओके, 2 × 3 मतलब आंसर आएगा 6. आंसर इज 6. ओके, वन मोर एग्जाम्पल, 7 raised to -2 raised to -5. इसे कैसे लिखेंगे पहले, ओके, दिस इज योर a raised to m raised to n, राइट. तो पहले इसका ये देखिए, ये -5 है, तो इसका पहले रेसिप्रोकल लिख लेंगे, a raised to 7 raised to 2 raised to 5. इसे पॉजिटिव बना लेंगे पहले, ओके, 1 करके. अभी इसे सॉल्व करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स, 7 raised to -2 multiply by 7 raised to, कितने बार लिखोगे, 5 बार. ओके, अभी 1/7 raised to हम ऐसे लिख सकते हैं, -2 multiply by 5. ओके, a raised to mn, मतलब क्या, 2 5 ज़ा 10. लेकिन यहाँ पे -2 है, माइनस, और यहाँ पे -2 है, -2 इंटू 5, तो यहाँ पे आएगा -10. ये इम्पॉर्टेंट है. ओके, इसी का मतलब क्या हुआ, 7 raised to 10. क्यों, हम पढ़ चुके हैं पहले ही, a raised to -m is equal to 1/a raised to m. This is the reason. Laws of indices. Remember, if a is a non-zero number and m and n are integers, then laws of indices are as follows. Practice set 29, simplify. Okay, now this we have to simplify. Which rule you will use here? Yes, correct. We will use this rule, a raised to m raised to n is equal to a raised to mn. 15/12 raised to 3 multiplied by 4, that is answer is
15/12 Next is 3/4 By using this rule 3/4 multiplied by -2, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना एक प्लस है एक माइनस है, तो आंसर क्या आएगा 3/4 2 ज़ा 8 बट -8 आएगा क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर है. +4 multiplied by -2 आंसर इज -8 3/-8. ओके नेक्स्ट इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे. रूल लिख लेंगे, उसके बाद 1/7 बेस है 1/7 -3 × 4 -3 × +4 तो क्या आएगा -12. ये इंपॉर्टेंट है. 1/7 -12 इज द फाइनल आंसर. सिमिलरली फोर्थ वन भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे. रूल लिख लेंगे, उसके बाद ये सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ पे देखो 2/5 बेस है -2 multiplied by -3 2 3 ज़ा 6 आएगा बट माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर इज पॉजिटिव, सो 2/5 सिमिलरली आगे के एग्जाम्पल्स भी हम इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे. अभी यहाँ पे हमने हर एक जगह एक ही रूल यूज़ किया है a⁻m⁴ = a⁻mn. तो यहाँ पे मैंने रूल नहीं लिखा है, तो एक ही रूल यूज़ कर रहे हैं इसलिए, लेकिन आप लिखते समय ये ज़रूर लिखना. राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग पॉजिटिव इंडाइसेस. अभी यहाँ पे इंडाइसेस क्या दिया है इस एग्जाम्पल पे. बेस है 2/7 इंडेक्स से माइनस में नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव बनाना है, तो कौन सा रूल यूज़ करेंगे. यस करेक्ट. बाय यूजिंग दिस लॉ a/b⁻m = b/a⁻m. यहाँ पे a क्या है 2, b क्या है 7, इंडेक्स क्या है m क्या है 2. ओके so answer is 7/2 and this the index is positive. okay यहाँ पे भी सेम करेंगे हम. 11/3 using this rule 3/11 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और इंडेक्स पॉजिटिव. ना here 1/6 by using this rule 6/1 6/1 मतलब क्या, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 6/3 बिकॉज डिनोमिनेटर में 1 है, दैट मीन्स 6/3 इज द फाइनल आंसर, और 6/1/3 y⁻⁻4. अभी कौन सा रूल यूज़ करेंगे. यस करेक्ट. a⁻−1 = 1/a⁻m. तो यहाँ पे क्या आएगा 1/y⁴. ओके तो ये आंसर हो गया बाय यूजिंग दिस रूल. इंडेक्स पॉजिटिव है यहाँ पे.